Students, today we in modern biotechnology course we will going to study about the genetics, the involvement of gene in the biotechnology. In this lecture, we will discuss what are the techniques and what are the strategy, what are the techniques available, and what will be the strategy to be adopted in a biotechnological process. And this lecture is a combination from molecular biotechnology from Glick, biotechnology book from Smith, and one more book is from Lehninger as well. So you can consult for further details. For further details, you can consult these books. So let's discuss this process. So, genes are the fundamental basis of life and they determine the property of living organisms. And these genes are basically the defined segments of DNA. So, the genetic recombination which occurs in nature during normal sexual reproduction, it consists in this recombination. This is basically the breakage and rejoining of DNA molecules of the chromosome and gives you reshuffling of the genes, genetic material, reassortment of genetic material, and you got the new varieties. This is all about the what is happening naturally, but the genetic engineering we as a biotechnologist do we it offers you unlimited opportunity for creating new combination of genes that do not exist under natural conditions. So, in a sense, biotechnology is the modification of the genetic properties of an organism by the use of recombinant DNA technology. So, the genetics is there in modern biotechnology in the form of recombinant DNA technology, which was initiated by Cohen and Boer. And this they this their technology made this feasible to manipulate the DNA molecule in such a way, in this way. So this recombinant DNA technology, we called it as gene cloning and molecular cloning. These are the general terminology which which intakes different numbers of experimental protocols which led to the transfer of genetic information from one organism to another organism. And what is this process? The overall process, what is it? There's a brief overview of this brief principle of this recombinant DNA technology, that you have a source DNA of one of the trait of that organism is beneficial for mankind. So you take the source DNA from the source cells and isolate its DNA. Then you have another thing which can carry this target DNA into itself, is called cloning vector. So basically you will isolate both the moieties from different origins, from source cell, whether it is animal, plant, bacterial cell. You synthesize this target. You isolate this source DNA, and that target DNA is then identified and amplified by PCR. Likewise, you will be isolating a cloning vector from a bacterial origin if it is of small size, if your target DNA is of small base pairs, and if it is of more size, then you will opt for different cloning vectors. We have a variety of cloning vectors we will discuss later in this lecture. So first step is the isolation of DNA from as for cloning vector from bacteria, and from the target DNA from source DNA. So after enzymatic fragmentation, that target DNA is isolated, and in the same manner, this circular cloning vector is linearized with the help of enzymes. And what are those enzymes we will discuss later. Then these two DNA fragments, they are joined together and they're again recircularize, and it becomes a recombinant DNA construct, and then you introduce into host cell, and then you isolate cells with the cloned gene.
and then the remultiplication of these this recombinant DNA construct into a host, and the protein which of interest is produced, and then you excavate that protein from the source. So this is all about the recombinant DNA. So what are the tools, the molecular tools of genetic engineering? There are enzymes. The genetic engineering toolkit is not completed, but if you can say, it's not being accomplished without enzymes, so it's not wrong. So the genetic toolkit contains enzymes and enzymes and enzymes only, which are used in recombinant DNA experiments. And the enzymes are restriction endonucleases, which cut your DNA, whether it is plasmid or circular DNA, whether it is a DNA from any source for whom proteins you want to develop. So restriction endonucleases are always there. They are very much important for any recombinant DNA experiment. And then ligases, DNA ligases, they join DNA molecule, different cuttings of DNA molecules together. So these two enzymes are very important in genetic engineering. So restriction endonucleases, there are three types of restriction endonucleases: one, two, and three. We will just discuss about restriction endonucleases two here, because that type of enzyme is much more importance, has much more importance in genetic engineering as well, and in this in this lecture as well. So one, two, and three. These are the types of restriction endonucleases, but we will discuss only restriction endonucleases two, particular to the our topic. So restriction enzymes act as molecular scissors and cut DNA at specific site. That these are, if it is a DNA structure of any source, then restriction enzyme basically cut it like a scissor at particular sites. So one of the first type 2 restriction endonucleases which was characterized was from bacterium E. coli and designated as EcoR1. This EcoR1 is a dimeric protein, and it symmetrically staggered cleavage of DNA produced two single stranded complementary cut ends with extension of four nucleotides we known as sticky ends. बेसिकली ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, ये पर्टिकुलरली टू की बात कर रही हूँ कि ये जो हैं ये विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन क्लीव करते हैं साइट को, मतलब ये मोर स्पेसिफिक हैं एज़ कम्पेयर टू वन एंड थ्री. तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पर भी जिसके लिए भी टारगेट हैं, ये उस रिस्ट्रिक्शन साइट के विद इन द रीजन जो है ना कट कर क्लीव करते हैं. और क्लीव करने के बाद इसकी जो डेवलप है, ये दो सिंगल स्ट्रैंड मतलब सेपरेट कर देता है डीएनए को, और ना सिर्फ सेपरेट करता है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जनरेट करता है, और एक्सटेंशन फोर न्यूक्लियोटाइड की इसमें एक्सटेंशन होती है, जिसको जो स्टिकी एंड्स के तौर पे, फ्लैंकिंग एंड्स के तौर पे उस डीएनए के साथ अटैच होते हैं. हमारे पास एक पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन है that we have a plasmid DNA, and we give a restriction with the EcoR1 enzyme. Here you can see what I'm talking about, the four base pair length of sticky ends. ये जो develop हुए हैं ये हैं sticky ends. Now the when it cleaved a circular plasmid, then it become a linearized DNA, and it is having sticky ends. Sticky ends mean they can rejoin with the help of some other enzyme. So these sticky ends they help this plasmid DNA to bind with the uh, uh, insert of our interest. So this is a human DNA. This human DNA is also cleaved by the same enzyme EcoR1, and it again produces the same kind of sequence with the flanking ends here. So this piece of human DNA with same restriction nucleases and containing the same sticky end. So ये end और plasmid के end अब same है. तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनकी टेंडेंसी टू रीजॉइन टू अनील जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी ये खुद से नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक इनको कोई एंजाइम यहाँ पर हेल्प नहीं करेगा. ये एक दूसरे के साथ अफिनिटी रखते हैं, एक दूसरे के करीब तो आ जाएंगे लेकिन ज्वाइन फिर भी नहीं कर सकेंगे. तो ज्वाइन करने के लिए आपको अनदर एंजाइम इज रिक्वायर्ड विच इज़ DNA ligase. तो जब आप इस तरह क्लीव करा लेते हैं, ये सेपरेट
सेपरेटली आपने 2 अलग-अलग जगहों पे ये क्लीव किया, उसके बाद आपने दोनों को इसके बाद ऑब्वियसली हम रन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आप इसको रन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल आप लोगों को अब तक, क्योंकि आप एमफिल लेवल के स्टूडेंट हैं, पता होना होगा, लेकिन ये कि मैं आपसे डिस्कस भी करूँगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर इसको रन करते हैं तो डिफरेंट बेस पेयर्स के हमारे पास कंस्ट्रक्ट आते हैं, उसको हम फिर वहीं उस जेल्स की कटिंग को ही प्योरीफाई करके डीएनए उसमें से आइसोलेट कर लेते हैं। फिर उनको हम एक अलग एपेंड ऑफ के अंदर जो है ना इन दोनों को इकट्ठा करते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर्स एंड एंजाइम। तो ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इस तरीके से करीब आ जाते हैं, लेकिन जब तक डीएनए लाइगेज नहीं आएगा ये आपस में स्ट्रांगली बिल्ट अप नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास ये अब आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट आ गया है, डीएनए कंस्ट्रक्ट आ गया जिसमें प्लाज्मिड डीएनए है और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इसके अंदर अटैच हो गया। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस टाइप 2 हैं, यही इन्हीं के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं जो डिफरेंट ओरिजिन से हैं, बैक्टीरियल ओरिजिन से हैं। ये डिफरेंट तरीका तरह की प्रोड्यूस करते हैं आपके पास एंड्स। अगर तो जैसे कि इको आर वन की बात हमने की थी, इस तरह बैम एच वन ये भी एक एंजाइम है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया गया और ये इसमें आप देखें कि ये भी जो है विद इन स्पेसिफिक रीजन, जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है उसके अंदर क्लीव कर रहा है और क्लीव करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये स्टिकिंग एंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 5 प्राइम फ्लैंक आ गया और यहाँ पर भी 5 प्राइम फ्लैंक आ गया, 3 प्राइम एंड इधर ही रह गया। ठीक है ना, 5 प्राइम एंड से उसने क्लीव किया, बाकी इधर चला गया, ठीक हो गया। और ये इसको हम कहते हैं 5 प्राइम फ्लैंकिंग एंड्स। ठीक है, ये एंड जनरेट हुए हैं और ये स्टिकी एंड्स भी हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे एक और एंजाइम की बात करें हीपा वन की, तो ये जो है ये ब्लंट एंड जनरेट कराता है, मतलब ये सेंटर से काटेगा इस सीक्वेंस को और जो जनरेट होने वाले आपके एंड्स हैं वो ब्लंट एंड्स होंगे। ठीक हो गया। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस दो तरीके के रिजल्ट देते हैं। एक तो कुछ टाइप इस तरह के एंजाइम्स की है जो कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करवाते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करवाते हैं, ब्लंट एंड्स। और फिर ऑब्वियसली इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। ब्लंट एंड्स को जो री अनील कराना है उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें एंजाइम का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपको इसमें जो है ना बाज़ दफ़ा यहाँ पर आपको सिंथेसाइज़ करवाने पड़ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ताकि स्टिकी एंड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी सिलेक्शन भी इसी पे डिपेंड करती है कि आप कौन से वाले एंडोन्यूक्लियसेस यूज़ करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। जी, ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमें ये शो हुआ हुआ है कि जो आपकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो 4 कटर या 6 कटर किस तरह से होते हैं और ये कि जो 5 फॉस्फेट एक्सटेंशन या 3 प्राइम हाइड्रॉक्सिल एक्सटेंशन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर ये जितने भी एंजाइम है, इको आर वन, बैम एच वन, पी एस टी वन, सौ थ्री ए वन, ये जितने भी एंजाइम्स हैं अगर आप इनके सीक्वेंस को रिकॉग्निशन साइट को काउंट करें तो ये जैसे इको आर वन है ये 6 जो है ना न्यूक्लियोटाइड पेयर के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। बैम एच वन भी यही करता है कि 6 न्यूक्लियोटाइड पेयर को ये आइडेंटिफाई करता है। अब ये जो सौ थ्री वन है या एच ई आई थ्री है ये 4 न्यूक्लियोटाइड पेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए इनको 6 कटर या 4 कटर कहते हैं। ठीक है, मतलब इको आई वन, बैम एच वन ये जो हैं ये क्या हैं, ये 6 और ये 6 कटर हैं और ये जो आपके 103A1 है या आपका HEAE3 है ये 4 कटर हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी होता है, ये जैसे आप नीचे देख रहे हैं ये 4 और 6 दोनों से ज़्यादा है, ये 8 कटर है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द एंजाइम के जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी नेचर है, तो लेकिन ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होते हैं वो 4 कटर्स या 6 कटर्स में से सिलेक्ट किया जाते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये विद इन द रिस्ट्रिक्शन साइट जो है उसको क्लीव करते हैं। यहाँ पे देखें एरोज़ देख रहे हैं ना, इन एरोज़ का मतलब ये है कि ये रिकग्निशन साइट के अंदर क्लीव कर रहे हैं। तो जब ये अंदर क्लीव कर रहे हैं तो अंदर क्लीव करने से अगर तो ये
जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स पे कट कर रहे हैं के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जो एक्सटेंशन डेवलप, अब देखिए ना, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ से जब ये 3 प्राइम से जी, इसने तो के जी और ए के बीच में क्लीव कर दिया, तो जी तो रह गया बाकी उसके साथ एसोसिएट, लेकिन ए वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है AATT, ये बन जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट एक्सटेंशन। इसी तरीके से जो दूसरा साइड है, दूसरा आपका स्ट्रैंड है, वहाँ पर ये जो ये वाला जी है जहाँ पर रेड एरो है मेरा, ये जी 3 प्राइम एंड है। ये 3 प्राइम एंड यही रह जाएगा, और ये 5 प्राइम एंड से, 5 फॉस्फेट एंड से जो है ना ए को फ्री करेगा। तो ये एक्सटेंशन आपके पास दो अलग अलग, लास्ट पिक्चर में भी हमने यही देखा था कि AATT अलग अलग हुए थे। तो जो ए है उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट एक्सटेंशन बन जाएगी। अब इसी तरह PST1 की बात करें तो PST1 भी 6 कटर है, और इसके अंदर भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये स्टिकी एंड्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि यहाँ पर 5 प्राइम के ऊपर जो है ना 5 प्राइम और 3 प्राइम के बीच में कटिंग हो रही है। तो जी वाला जो है वो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसके साथ अटैच रह जाएगा, और जो 3 प्राइम फॉस हाइड्रोक्सिल एंड है वो सेपरेट होगा। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में भी यही होगा कि ए जो है वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एक्सटेंशन से रिलीज होगा। मतलब जो स्टिकी एंड जनरेट हो रहे हैं ना, उसका टर्मिनल के ऊपर OH लगा हुआ होगा। अगर वो 5 प्राइम से रिलीज होंगे तो फॉस्फेट अटैच होगा, अगर वो 3 प्राइम से रिलीज होंगे तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। ये फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, और ब्लंट एंड्स के अंदर तो आपके पास कोई प्राइम्स नहीं है, वो तो डायरेक्टली जो है सेंटर से उसने कटिंग करनी है आपके न्यूक्लियोटाइड की आपके सीक्वेंस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 3 हाइड्रोक्सिल एक्सटेंशन या 5 हाइड्रोक्सिल, सॉरी 5 फॉस्फेट एंड्स जनरेट होते हैं। बात करते हैं डीएनए लाइगेजेस की। डीएनए लाइगेजेस का मैंने पहले बताया कि जो ये स्टिकी एंड्स हों या ब्लंट एंड्स हों, वो आपस में जॉइन सिर्फ और सिर्फ डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में करते हैं, और ये डीएनए लाइगेज ज़्यादातर ड्राइव होता है बैक्टीरियोफेज T4 से। So this enzyme catalyzes the formation of phosphodiester bonds at the ends of DNA strands that are already held together by base pairing of two extension। दो स्ट्रैंड्स की जो बेस पेयर्स हैं वो एक दूसरे को करीब ले आएंगे, उस पे डीएनए लाइगेज जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ऐसा नहीं है कि डीएनए लाइगेज ने इन दोनों को पहले पोजीशनिंग करवानी है इनकी, फिर उसने करना है, नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से दोनों स्टैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, फिर डीएनए लाइगेज जो है बस उसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। ठीक है, DNA ligase also join blunt end in that in come contact when they bind to the enzyme। कंडीशंस का फ़र्क है। मैंने पहले भी बताया था जब मैं ब्लंट की बात की थी कि ब्लंट को जब लाइगेट करेंगे तो इट डिपेंड्स के वो एंड्स कौन से वाले हैं। मतलब जो ब्लंट एंड हैं उनके लिए जो लाइगेशन है वो 10 to 100 टाइम्स उसमें ज़्यादा T4 DNA लाइगेज इस्तेमाल होता है, और वो जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर किए जाते हैं। ठीक है, और जो आपके प्रोट्रूडिंग एंड्स हैं या स्टिकी एंड्स हैं उनके लिए लो टेम्परेचर के ऊपर आपने अपने जो है ना लाइगेशन करवानी होती है। ठीक है, प्रोट्रूडिंग एंड के लिए लो टेम्परेचर पे आपको चाहिए और थोड़ी अमाउंट ऑफ डी 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 TNF लाइगेज इस्तेमाल होती है। लेकिन जब ब्लंट एंड्स आप प्रोड्यूस कराते हैं तो 10 to 100 टाइम्स मोर DNA लाइगेज चाहिए होता है, और साथ ही साथ आपको इस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे करना पड़ता है, बिकॉज स्टेबल बेस पेयरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन स्टिकी एंड्स को आपने लो टेम्परेचर पे इसलिए कराना है ताकि स्टेबल बेस पेयरिंग जो है वहाँ पर हो सके, मतलब एक दूसरे के करीब आ जाएं, तब डीएनए लाइगेज जो है उस पे काम करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज क्लोनिंग वेक्टर्स। अब आपने अपना कंस्ट्रक्ट, आपने अपनी रिक्वायर्ड इंटरेस्ट जीन इंटरेस्ट को क्लीव करवा लिया है, लेकिन उसको आपने मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेशन के लिए आपको किसी की असिस्टेंस चाहिए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि आपके रिक्वायर इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सके। तो उसके लिए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो इसी उसी प्लाज्मिड
की में मतलब कुछ को नेचुरली यूज़ किया गया, फिर बाद में इसको कंस्ट्रक्ट भी किया गया कि क्लोनिंग वेक्टर्स को अपनी मर्ज़ी के अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट भी किया गया। तो ये होते क्या हैं क्लोनिंग वेक्टर्स, ये एक्चुअली में डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं विच कैन कैरी अ फॉरेन पार्टिकल टू बी क्लोन्ड। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे कि प्लाज्मिड होते हैं, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन एन अप्रोप्रिएट होस्ट। और ये जो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं इसमें हम उन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस भी हैं, कॉस्मिड्स भी हैं, और आर्टिफिशियल यीस्ट क्रोमोसोम्स भी हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम्स भी आर्टिफिशियल सिंथेसाइज हुए हैं टू वर्क एज अ क्लोनिंग वेक्टर। So, what is the ideal characteristic of a vector? That it should be small in size and with single nucleus site. एक ही साइड होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बात है नेचुरल की। नेचुरल के अंदर एक ही मतलब एक साइड जिसके अंदर होगी उसको आप उसको आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो प्लाज्मिड जिसको आप यूज़ कर रहे हैं जीन को कैरी करने के लिए, उसके अंदर कोई सिलेक्टेबल जेनेटिक मार्कर्स होने चाहिए जो उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करें कि ये, चूँकि देखें जीन्स को आप उनके एक्सप्रेशन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर प्लाज्मिड के अंदर कोई सिलेक्टेबल जेनेटिक मार्कर होंगे तभी आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसने आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी किया या नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर था उसकी उसकी पिक्चर मैंने शेयर की है। PBR322, P फॉर प्लाज्मिड, BR फॉर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको किया था, बॉलिवियस एंड रॉड्रिगेज हैं। उन्होंने इसको किया था आइडेंटिफाई, और 322 इसका नंबर है जिससे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली ये जो सर्कुलर डीएनए है ये 4361 बेस पेयर का एक प्लस सर्कुलर प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर आप ये देखें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। एक वो जिसको हम कहें ना सिलेक्टेबल जेनेटिक मार्कर, वो एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। इसका मतलब है अगर इसको आप एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो, एम्पिसिलिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है और टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है। आप जब इसको एंटीबैक्टीरियल मीडियम पे ग्रो करेंगे और यही वाली एंटीबैक्टीरियल यूज़ करेंगे तो ये वाला जो प्लाज्मिड है या ये वाला जो माइक्रोब है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है वो सर्वाइव कर जाएगा उस मीडियम के ऊपर। अगर इनमें से कोई भी एक जीन काम नहीं करेगी तो ये उस पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा, उस पर ये किल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मिड जो है वो माइक्रोब्स को जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये देखें इस जो प्लाज्मिड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स की बात करें तो EcoR1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, BAMH1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, SOL1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, PST1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है और PVU2 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो मतलब आपके पास 5 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो EcoR1 जो है उसके अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपकी दोनों सिलेक्टेबल मार्कर की जीन्स जो है वो इंटैक्ट रहेंगी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके पास क्योंकि आप एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के ऊपर ये ग्रो कर सकता है, तो आपको सिलेक्शन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप BAMH1 यूज़ करेंगे तो जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो BAMH1 वाले में आके बाइंड कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने पर्टिकुलर माइक्रोब को जिसने इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को इनटेक किया होगा उसको जब आप टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली जीन काम नहीं कर रही होगी और ये माइक्रोब वहाँ पर नहीं सर्वाइव करेगा, ये वहाँ पर क्लीव आउट हो जाएगा। सो आगे हम डिस्कस करते हैं मज़ीद इसको कि किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। बहरहाल ये क्लोनिंग वेक्टर की बात थी कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दे मस्ट हैव सिलेक्टेबल मार्कर। इस तरीके से इनकी आइडेंटिफिकेशन इनकी ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ये हमारे पास एक और क्लोनिंग वेक्टर है, पी PUC19 बोलते हैं, PUC19 कह सकते हैं। ये 2000 बेस पेयर का एक हमारे पास प्लाज्मिड है जिसके अंदर आपके पास देखें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और उसके अलावा एक लैक ओपरोन पूरा का पूरा है। लैक ओपरोन जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो प्रोटीन है, एंजाइम है, उसकी सिंथेसिस के लिए होता है। तो ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज इकोलाई के अंदर ये इसकी सिंथेसिस होती है। तो ये वाला पूरा ओपरोन जो है ना वो इसके अंदर अटैच किया गया और इसी के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस साइट रखी है। मतलब जितने भी आपके जॉन जॉन से भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो सारे इसी जगह इसी के अंदर अंदर क्लीव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहीं पर ऐड हो सकता है। तो जब वो यहाँ पर ऐड होगा तो ऑब्वियसली फिर वो लैक जी की सिंथेसिस में इश्यू क्रिएट करेगा।
जब वो इशू क्रिएट करेगा तो इसको सेलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, जब आपने इसको फर्दर सिलेक्शन करनी है कि आपका कंस्ट्रक्ट इसके अंदर है या नहीं है। ठीक हो गया। प्लाज्मिड्स का एक और चीज़ भी होती है नोट करने वाली कि हाई कॉपी नंबर है या लो कॉपी नंबर है। हाई कॉपी नंबर का मतलब ये है कि एक प्लाज्मिड जो है वो 10 टू 100 कॉपीज़ पर होस्ट सेल के डेवलप कर सकता है अगर, तो उसको हम हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड कहते हैं। और अगर वो सिर्फ 2 से 4 कॉपीज़ बनाता है एक सेल पर सेल की अपनी, तो वो लो कॉपी नंबर होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मतलब आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस की है। तो उसके लिए आपके पास अगर थोड़ा रिसोर्स है तो आप चाहते हैं जी हाई कॉपी नंबर यूज़ करें। और ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर्स अलग होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स अलग होते हैं, तो उसमें दोनों में ये चीज़ जो है आपकी इस्तेमाल हो सकती है। ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि एक्सप्रेशन लेवल पे जब आपकी जीन जा रही हो, जब आप उसको एक्सप्रेस कराएँ उसकी प्रोटीन को, तब आप हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज़्मिड यूज़ करें, ठीक है? और जो आपका जब आपकी ये क्लोनिंग का है काम चल रहा है, तब आप लो कॉपी नंबर वाले प्लाज़्मिड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। ये तो था कि सारा क्लोनिंग वेक्टर्स की बात हो रही है, प्लाज्मिड्स की बात हो रही है, और उसमें हमने ये दूसरा प्लाज्मिड देखा है पीयूसी 19। ज़्यादातर चूँकि ये एक छोटा प्लाज्मिड है और छोटी जीन्स को मतलब आपके पास आगे से ये भी आएगा कि कितने सीक्वेंस वाली जीन जो है वो कौन-कौन से प्लाज्मिड क्या कौन-कौन से वेक्टर्स कैरी कर सकते हैं। तो पीयूसी 19 ये तो ख़ैर मैंने खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रखी है क्लोनिंग वेक्टर। तो ये एक आप कह लें यूज़र फ्रेंडली क्लोनिंग वेक्टर है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स हैं कि क्या-क्या टाइप्स हो सकती हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। सबसे पहले तो उसमें प्लाज्मिड है, जो कि आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए है इन माइक्रोब्स। ये नेचुरली अकरिंग मल्टी कॉपी प्लाज्मिड होते हैं। ये इनके अंदर जो इंसर्ट साइज़ या जो डीएनए का साइज़ रिटेन रह सकता है, वो लेस देन 10 केबी है। लेस देन 10 केबी को आप जो है कर सकते हैं इसके अंदर इंसर्ट। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं जी? सब क्लोनिंग में है और डाउनस्ट्रीमिंग मैनिपुलेशन में है, cDNA क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन एसेज़। आप जब कोई आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हैं, आप कोई नया जीन आइसोलेट कर रहे हैं, तब आप जो है प्लाज़मिड्स को ही प्रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेजेस हैं। बैक्टीरियोफेजेस से को भी हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बैक्टीरियोफेज लैम्डा है। इसके अंदर हम अगर हमारे पास 10 से ज़्यादा है से बड़ा है, तो बेस पेयर, तो हम उसको 5 टू 20 का केबी तक इसके अंदर इंसर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका अगर इंसर्ट 10 से ज़्यादा का है तो आप बैक्टीरियोफेज को यूज़ करें। ये जीनोमिक डीएनए क्लोनिंग के लिए ज़रूरी, जब जीनोमिक डीएनए क्लोनिंग करनी है आपने, उसमें ज़रूरी है। cDNA क्लोनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोनिंग के लिए और एक्सप्रेशन लाइब्रेरीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्लाज़मिड के साथ इसका कंपैरेटिवली है, मतलब क्योंकि जब आप रूटीन में या जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आप बड़े फ्रेगमेंट्स भी सिलेक्ट करते हैं, जिनको आपने क्लोन करना होता है। तो फिर आप फेजेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपने लैब लेवल पे, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेबॉरेटरी लेवल पे, लेबॉरेटरी स्केल पे आपने प्लाज़मिड यूज़ करने हैं, आप फेजेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इवन के कॉस्मिड भी यूज़ हो सकते हैं अगर आपका काम जो है, वो किसी बड़े जीन कंस्ट्रक्ट के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मिड। कॉस्मिड होते हैं जी प्लाज्मिड कंटेनिंग अ बैक्टीरियोफेज लैम्डा कॉस साइट। होता है प्लाज्मिड ही है, लेकिन इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जो कॉस साइट है वो इसके अंदर अटैच हुआ होता है। तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज को और प्लाज्मिड को जब इकट्ठा करते हैं, तो वो सर्कुलर डीएनए जो ये बन रहा है, ये आपका क्या बनेगा? कॉस्मिड कहलाएगा। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्ट आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रिटेन करने की इसकी कैपेसिटी है, वो 35 टू 45 किलो बेस पेयर तक जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए कॉन्स्ट्रक्ट ये मेंटेन कर सकता है। और कॉस्मिड ज़्यादातर जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास बैक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ई कोलाई के एफ फैक्टर को यूज़ करके प्लाज्मिड बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये 775 टू 300 किलो बेस पेयर के इंसर्ट को यूज़ करने की कैपेसिटी रखता है, और ये लार्ज जीनोम के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? उसके बाद है जी यैक, ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस सेंट्रोमियर है, इसके अंदर टीलोमियर एंड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस इसमें ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हैं। इनके अंदर जो है ये इंसर्ट किए गए हैं, और ये 1 एमबी जो है 1 मेगा बेस पेयर्स को
तक के सीक्वेंस को अपने अंदर इंसर्ट करके उनको आगे क्लोनिंग या उनकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है एनालिसिस ऑफ लार्ज जीनोम के लिए, या यैक ट्रांसजेनिक माइस जो है उसके लिए इसमें एप्लीकेशन यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट है मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक बोलते हैं इसको। इसके अंदर मेमेलियन सेंटोमियर और टीलोमियर और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन को कंबाइन किया गया है, और इसके अंदर भी था 100 केबी से ज़्यादा के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, इंसर्ट्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। ये अंडर डेवलपमेंट है फॉर द यूज़ इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन जीन थेरेपी। ठीक है, ह्यूमन जीन थेरेपी के लिए जहाँ पर कोई भी डिफेक्ट को ठीक करना है ह्यूमन के या एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की साइड पे लेके जाना है इसको, तो वहाँ पर जीन्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं, तो वहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे। इसको आप इंडिविजुअल भी स्टडी कर सकते हैं ग्लिक से। नेक्स्ट हमारी बात है ट्रांसफॉर्मेशन की। जब आपने एक दफ़ा अपना डीएनए, जो हम पिछले बातें कर रहे थे कि जो आपका प्लाज्मिड डीएनए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आपने एंडोन्यूक्लियस आपने आइसोलेट करने के बाद सेम एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कर दिया है और उनके अंदर सेम एंड्स जनरेट हो गए हैं, तो उनकी टेंडेंसी है कि वो आपस में बाइंड करेंगे और डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में आप उन्हें बाइंड करवा लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट काम आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप उस प्लाज्मिड को पर्टिकुलर होस्ट में जो है एंटर करवाएँ। ठीक है? उसके उस काम को हम कहते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन, और ट्रांसफ़ॉर्मेशन के कई सारे मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें से मैं यहाँ पर जनरली बात कर दूँ कि वो जो है डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए आपने इस कंस्ट्रक्ट को किसी होस्ट के अंदर पहुँचाना है, और ज़्यादातर होस्ट ई. कोलाई जो है वो यूज़ करते हैं हम। ये जब होस्ट के अंदर चला गया, अच्छा जी, प्लाज़्मिड और फ़ॉरेन डीएनए जब आपस में जिनके सेम एंड्स हैं, वो जब लाइगेशन होती है तो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आपका प्लाज़्मिड जो है वो फ़ॉरेन डीएनए को पिक कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि इंसर्ट जो है या तो वो आ जाए, अगर ये हम बात कर रहे हैं अब पीयूसी 19 की, तो वो लैग ज़ी के अंदर अगर आ गया है और वो बाइंड कर गया है, ठीक है? तब तो आपका इंसर्ट बिल्कुल आपकी जो आप चाह रहे हैं वही काम हुआ है। बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि इंसर्ट जो है वो लैग ज़ी की जगह कहीं और जो है इंसर्ट हो गया है, या पेयरिंग जब हो रही है तो सेम एंड्स प्रोड्यूस होगा। देखिए, आप अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे तो नहीं गए हुए ना, आपने एंडोन्यूक्लियस डाला और आपने क्लीव करवा लिया, हो सकता है वो 1 से 2 जगह क्लीव कर दे, ठीक है? तो जो हर दफ़ा कंस्ट्रक्ट जो है वो आपकी एप्रोप्रिएट साइट पे नहीं जाता, प्रोबेबिलिटी होती है हर दफ़ा आपके पास, ठीक है? तो फॉरेन डीएनए अपनी पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पर उसको अटैच करना चाहिए, अगर हम पक 2019 की बात कर रहे हैं, तो ये लैग ज़ी के रीजन के अंदर इंसर्ट अटैच हो गया है अगर, तो वेल एंड गुड। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो कहीं और आपस में जो है ना बेस पेयरिंग, क्योंकि देखें जो आपके इंसर्ट है उसके भी तो फ्लैंकिंग एंड्स एक जैसे हैं ना, और आपके जो वो है प्लाज्मिड है उसके भी फ्लैंकिंग एंड एक जैसे हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि फ्लैंकिंग एंड्स अगर प्लाज्मिड के आपस में मिल गए, जिसको आपने एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराया हुआ था, और वो आपस में ही ज्वाइन कर गए, डीएनए लाइगेज ने प्लाज्मिड को एज इट इज वापस जोड़ दिया विदाउट टेकिंग एनी इंसर्ट, ठीक है? तो वो आपका प्लाज्मिड तो रीसर्कुलर हो गया, लेकिन उसमें डीएनए नहीं है आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो आपके पास ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। जब अब आपने इनको इलेक्ट्रोपोरेशन के मेथड से कराएँ या कैल्शियम क्लोराइड, जिस भी मेथड से आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराई, ये प्लाज्मिड सेल के अंदर चला गया है, ठीक है? सेल के अंदर चला गया। अब जब जिस तरह से आपके पास 3 टाइप के प्लाज्मिड हैं, इस तरह से आपके पास सेल भी आगे 3 टाइप्स के बनेंगे। जिन बैक्टीरियल सेल ने इनको अपटेक किया है, वो भी 3 तरीके के होंगे। अब आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि आपका वो वाला माइक्रोब कौन-सा है जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे कि आपका, अब देखें ये जो डार्क ब्लू कलर है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये तीनों केस में इंटैक्ट है। इसका मतलब है एम्पिसिलिन मीडिया पे आप इसको ग्रो करेंगे तो ये तीनों माइक्रोब ग्रो कर जाएँगे। इन सब के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। ये एम्पिसिलिन को की प्रेज़ेंस में जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे और ये शो हो जाएँगे, ठीक है? अब दूसरा दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर हमारे पास लैकोप्रोन है। लैकोप्रोन में मैंने पहले ही बता दिया था, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज़ एंजाइम प्रोड्यूस करना है, ठीक है? और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज़ एंजाइम जो है उसका जो सबस्ट्रेट है वो एक्स गाल है,
ठीक है। ये इसका केमिकल नेम 5 ब्रोमो 4 आइडो, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इसका। ठीक है। मैं आपको फिर भी नोट्स में से आपके है वहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक्सगाल क्या है? इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। और आईपीटीजी क्या है? आईपीटीजी बेसिकली एक केमिकल है जो कि प्रोमोटर है इस रीजन का, इस एंजाइम, इस लैकोप्रोन का प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा ये, और इस एंजाइम की सिंथेसिस को इन्हांस करेगा। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने कल्चर मीडिया में उस प्लेट के अंदर डाली हुई है अपनी, जिसमें आपने ग्रो करवाने हैं माइक्रोब। एम्पिसिलिन भी डला हुआ है, एक्सगाल भी मौजूद है और आईपीटीजी भी मौजूद है। अब आपके माइक्रोब जब आप इसके ऊपर ग्रो करवाएंगे, जिनको आपने इलेक्ट्रोपोरेशन के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन करा ली है, तो आपके मीडिया के अंदर 3 तरह के माइक्रोब हैं। एक, पहले तीनों तो वो हैं, पहले तो वो तीनों जो हैं वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होंगे। उसके बाद दूसरा वो होगा जिसके अंदर कोई इंसर्ट नहीं किया। ठीक है। और उसका लैक ऑप्रोन जिस तरह से क्लीव हुआ था वैसे ही सेम वापस जुड़ गया है और लैक ऑप्रोन इंटैक्ट रह गया है। तो वो क्या करेगा? वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। वो एक्स गाल को यूज़ करके ब्लू कलर की कॉलोनी बना देगा वहाँ पे। ठीक है। एक ब्लू कलर डेवलप कराएगा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्स गाल जो है वो कलर्ड क्रोमोजोन है, जब वो उसको क्लीव करता है तो एक कलर्ड कंपाउंड डेवलप करता है। ठीक है। तो ब्लू कलर की कॉलोनी आ जाती है। इसके दूसरा प्रोबेबिलिटी वो है कि आपका इंसर्ट जो है उसने लैक ऑप्रोन वाली जगह पे बाइंड नहीं किया, बल्कि उसने कहीं और बाइंड कर लिया प्लाज्मा में जाके। उसका भी लैक ऑप्रोन इंटैक्ट है। वो भी क्या करेगा? वो एक्स गाल को यूज़ करता हुआ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा, वो एक्स गाल को क्लीव करेगा और वहाँ पर ब्लू कलर की कॉलोनी बना देगा। ठीक है। तीसरा आपका कंस्ट्रक्ट वो है जिसके अंदर आपका एक्चुअली में इंसर्ट मौजूद है। वो इंसर्ट क्या करेगा? वो वहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे जो लैक जी जीन है, लैक आई जीन है, वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर सकेंगी और यहाँ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये माइक्रोब जो है ये एक्स गाल को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। जब डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा तो कोई ब्लू कलर नहीं बनाएगा, बल्कि वाइट कॉलोनी की फॉर्म में अपेयर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो आपकी प्लेट है, कल्चर प्लेट है, उसके ऊपर वाइट और ब्लू कॉलोनीज बन जाती हैं। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो वाइट कॉलोनी है उसके अंदर आपका कंस्ट्रक्ट है। फिर आप उस वाइट कॉलोनी को पिक करके सेपरेटली उसको मीडिया में ग्रो करते हैं और फिर उसकी आप आगे फर्दर पे पीसीआर करके उसमें से अगेन रिस्ट्रिक्शन लगा के आप चेक करते हैं जी कि आपका इंसर्ट इसके अंदर इंटैक्ट मौजूद है या नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन होती है। ये ओवरऑल हमारे पास स्ट्रेटजीज जो हमारी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो आपका फ्रेगमेंट है जिसके अंदर जो आपने फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप समझ लें आपकी सारी लेक्चर की समरी मैंने एक बना दी है कि आपका डीएनए फ्रेगमेंट आपने आइसोलेट करना है। ठीक है। उसको आपने स्पेसिफिक एंजाइम के ज़रिए, एंडोन्यूक्लियोसिस के ज़रिए जो है क्लीव करवाना है। फिर स्प्लाइसिंग ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर्स हैं। फिर आपने डीएनए को ज्वाइन कराना है उसके वेक्टर के हिसाब के डीएनए के साथ विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, डीएनए लाइगेज। उसके बाद आपने उस कंस्ट्रक्ट को जो है होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। द वेक्टर आर आइदर वायरस, प्लाज्मिड एंड द रेप्लिकॉन्स एंड एग्जिस्ट इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट, ट्रांसफर नॉर्मली बाय ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। डिफरेंट मेथड्स हैं सेल के अंदर ले जाने के लिए। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ न्यूली एक्वायर्ड डीएनए, वो सिलेक्शन अभी हमने पीछे प्रोसीजर देख लिया कि ब्लू वाइट कॉलोनीज होंगी या टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। अगर आप पीबीआर वाला वेक्टर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन आप सिलेक्शन होती है। तो इस तरीके से आपने सिलेक्शन और फिर कैरेक्टराइजेशन करनी है अपने रिकॉम्बिनेंट क्लोन की। ठीक है जी। यहाँ तक आपका पार्ट 1 आज कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर यू कैन आस्क देम, एंड थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।